Hello, my dear friends. I welcome you all to my YouTube channel EduTech IS, and today we are going to discuss about a very important topic, that is National Education Policy 2020. First of all, we'll see why this was in news. Recently, the Union Cabinet has approved the new National Education Policy 2020, and with the aim to introduce changes from school up to college level. The cabinet has also approved renaming of Ministry of Human Resource Development to Ministry of Education. So from now the Ministry of Human Resource and Development will be known as Ministry of Education. Since independence, this is the third major national education policy which is being brought. The other two were brought in 1968 and another was brought in 1986. So this is the third, and it is after a gap of 34 years. Now looking at the historical background, this one is not very important for your exam purposes, but it has some trivial information which we need to remember, like the name of the person, the name of the chairman of that particular committee. In May 2016, a committee was formed for evaluation of new education policy, which was headed by T.S.R. Subramaniam. And in June 2017, based on the report of the previous committee, a committee was formed for formation of draft national education policy. It was headed by Dr. K. Kasturi Rangan, which submitted the draft national education policy in 2019. Based on that, we are seeing this National Education Policy 2020, which is being cleared by the cabinet. Key points of this policy, if we look about the key points of this policy, it aims to make India a vibrant knowledge society, and it will focus more on holistic, flexible and multidisciplinary education. इसके बारे में वीडियो में और जानेंगे आगे जैसे ही आएगा, इसके बारे में सबके बारे में जानेंगे हम. और दिस इज ऑल्सो अलाइंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. आवर SDG goal number 4 is to provide quality education to all by 2030. So in order to achieve that, this will be a great step. Looking ahead, अब हम इसे डिवाइड करेंगे पार्ट्स में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की, फिर हम हायर एजुकेशन में जाएंगे और फिर कुछ अदर रिफॉर्म्स देखेंगे. तो स्कूल एजुकेशन में वी नीड टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल, यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, किसी भी लेवल में. एंड देयर इज़ अ टारगेट टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030. अभी ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? सपोज किसी एरिया में अगर 100 बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए स्कूल्स में, जिनकी एज 3 इयर्स से ज़्यादा है, वो एलिजिबल हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, लेकिन सबका एडमिशन नहीं हो पाता. उसमें से 50 ही बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, बाकी 50 का एडमिशन नहीं कराया गया स्कूल में. Then the gross enrollment ratio will be 50%. As the name suggests, how many children are enrolled in that particular course. So here अगर 50 ही बच्चों का एडमिशन हो पाता है तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50 हो जाएगा, जबकि एलिजिबल कितने थे? 100. अगर इनमें से केवल 20 का ही हो पाता तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 20 होता. तो हमें इसका मतलब है कि हमें सारे बच्चों का एडमिशन स्कूलों में करा देना है. नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं पहुंच पाते किसी भी कारण से. उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ओपन स्कूलिंग सिस्टम रहेगा. ओपन स्कूलिंग सिस्टम अ टाइप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, एक डिस्टेंस एजुकेशन के जैसा होगा, जैसा अभी NIOS है,
similar to that. Now looking ahead, हाँ, अभी हम और आप जिस सिस्टम में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वो था 10+2, that was 10+2 curriculum. Now the new proposed curriculum is 5+3+3+4 curriculum. 10+2 में जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10th क्लास तक हमें सेम सब्जेक्ट सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और उसके बाद हमें +2 के लिए स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था, विच पर्टिकुलर स्ट्रीम यू वांट टू स्टडी. ओके, ये था 10+2. पर अब इसे चेंज कर दिया जाएगा 5+3+3+4. तो सबसे पहले आता है फाउंडेशनल स्टेज 5 years. तो यहाँ पे 5 को भी ब्रेक किया गया है 3+2 में. यहाँ पे जो 3 है दैट इज फ्रॉम एज 3 to 6 year, and the next 2 years will be for classes 1 and 2. This will be known as foundational stage. और यहाँ पे बच्चों को प्ले बेस्ड लर्निंग कराया जाएगा. The next stage comes class 3 to class 5, that is preparatory stage, and similarly 6 to 8 will be middle stage, and then comes after 8 from 9 to 12 there will be secondary stage. और इसकी खास बात एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ. तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो ये होगा हमारा पेडागोगिकल स्ट्रक्चर. जैसे ही हम सेकेंडरी स्टेज में जाएंगे तो यहाँ हमें सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा. मतलब इसका मतलब ये कि अब 9th क्लास से ही बच्चों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उनको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी. पर स्ट्रीम चूज़ करने में उनको थोड़ी सी फ्रीडम रहेगी. जैसे बच्चे अभी सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, अगर आर्ट्स लिया हुआ है तो साइंस नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स लिया हुआ है तो वो नहीं पढ़ सकते. ऐसा नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी. आप साइंस के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं. जैसा कोर्स बनाया जाएगा बेस्ड ऑन दैट. तो यहाँ पे ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली. आगे देखते हैं. हाँ, ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की एक खास बात है, एक खूबी है, वो ये कि अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन के अंदर कवर होते थे 6 साल से लेके 14 ईयर्स के बच्चे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A. लेकिन जब हम इस न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 ईयर्स से लेकर के 6 ईयर तक के ग्रुप के बच्चे भी इंक्लूडेड हैं. 3 ईयर्स से जो कि हमेशा छूट जाते थे, 3 to 6 ईयर्स के बच्चे ये छूट जाते थे और इनको रिकग्नाइज़ किया गया कि इनका एजुकेशन बहुत ज़रूरी है मेंटल डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड के. तो अब इसको भी कवर किया जाएगा. इस न्यू नेशनल एजुकेशन की ये बहुत ख़ास बात है कि 3 to 6 ईयर्स के बच्चे इनको भी इंक्लूड किया जाएगा. अच्छा, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम अभी जिस तरीके से होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही बोर्ड एग्ज़ाम पे अहमियत दी जाती है. बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि बोर्ड में परफॉर्म करना है, वरना पता नहीं ज़िंदगी में क्या करेंगे. और जिस कारण से बहुत सारे बच्चे गलत कदम भी उठाते हैं जब उनका रिज़ल्ट बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो पाता. तो बोर्ड एग्ज़ाम में उसके लेवल को थोड़ा इजी बनाया जाएगा और रोट लर्निंग को हटा करके फोकस किया जाएगा कि बच्चे फैक्ट्स नहीं मेमोराइज़ कर रहे हैं, बच्चे कॉन्सेप्ट कितना सीख रहे हैं. तो फैक्ट्स मेमोराइज़ करने से काम नहीं चलेगा. बोर्ड एग्ज़ाम में फैक्ट्स काम नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे. और एग्ज़ाम 2 बार लिया जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार लिया जाएगा. अगर एक बार किसी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता तो वो सेकंड टाइम भी दे सकता है. ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है. ग्रेड 5 तक, एटलीस्ट अप टू ग्रेड 5 क्लास तक जो टीचिंग होगी वो मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को देने की कोशिश की जाएगी.
अब यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। एजुकेशन इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट, तो दैट डिपेंड ऑन द स्टेट। सो यहाँ पे मस्ट नहीं है, पर ये ऐसा कहा गया है कि जहाँ तक भी संभव हो अप टू 5 क्लास बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। उनमें कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ज़बरदस्ती इंग्लिश सीखो। ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज या अपने मदर टंग में ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। नाउ अ national foundational literacy and numeracy mission will be launched। इसका काम ये होगा कि अभी जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे 8वीं के बच्चे 5वीं की किताब नहीं पढ़ पाते। ऐसा हाल है स्कूलों का, खास करके सरकारी स्कूलों का तो हालत बहुत ही ख़राब है। तो उनको फाउंडेशनल लिटरेसी, मतलब कि वो अपने लेवल के बुक, जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1, क्लास 2 है तो क्लास 2, या उससे नीचे है तो उससे नीचे के बुक वो पढ़ पाएँ, और साथ ही साथ उन्हें नंबर्स कैलकुलेशन आइडेंटिफाई कर पाएँ, प्लस माइनस जो भी है वो सीख पाएँ। न्यूमरेसी के लिए भी फोकस किया जाएगा ताकि वो पढ़ पाएँ और सीख पाएँ। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। ये एक अच्छी बात है। वोकेशनल एजुकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी बच्चे को जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट होगा, उस फील्ड में उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, वो काम करवा जाएगा। हो सकता है गार्डनिंग हो सकता है इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव कुछ हो। इंटर्नशिप क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बच्चे ना ही सिर्फ पढ़ेंगे, किताबी कीड़े बनकर नहीं रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा। तो जैसा कि मैंने बोला, ये सारे डिटेल थे स्कूल एजुकेशन के। अब हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या है। हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है वो है 50% बाई 2035, और स्कूल एजुकेशन में 100% बाई 2030 था। डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। हायर एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अभी अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ख़राब है, 26.3%। इतने ही बच्चे एडमिशन ले पाते हैं या इनरोल कर पाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का जो हमारा कोर्स होता है, इधर 3 ईयर और 4, उसमें मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए वो एडमिशन लेता है और किन्हीं कारणों से 1 साल बाद उसे छोड़ना पड़ जाए अपना ग्रेजुएशन, तो उसको फर्स्ट ईयर के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसका साल बर्बाद नहीं होता, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। एटलीस्ट 1 ईयर ही हैज़ स्टडीड एंड ही विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। तो यहाँ पे एग्जिट कर सकता है। सेकेंड ईयर में कोई बच्चा अगर एग्जिट कर जाता है तो उसको सर्टिफिकेट एडवांस डिप्लोमा का मिल जाएगा, उसने एडवांस डिप्लोमा किया। अगर थर्ड ईयर में तो उनको एक कोई बैचलर डिग्री मिल जाएगी, जिस भी फील्ड के वो हैं, बैचलर डिग्री 3 years। एंड इफ complete 4-year course, then it is an integrated course, bachelor degree with research, बैचलर डिग्री विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कॉलेज से ड्रॉप आउट कर जाते हैं बच्चे, और उनका जो साल है 1 साल 2 साल बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं करते, और वो साल पूरा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। आगे देखते हैं। आगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक ख़ास बात और है कि बच्चों में एक रिसर्च कल्चर डेवलप करने की बात की गई है। इंडिया में रिसर्च कल्चर बहुत ही ख़राब है। रिसर्च होते नहीं हैं, या अगर होते भी हैं तो अच्छे ढंग से नहीं होते, उस पर इन्वेस्टमेंट फोकस बहुत कम रहता। तो उसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी सेटअप
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू होगा। इसका एम यही है कि रिसर्च लाए कॉम्पिटिटिव एंड पीयर रिव्यूड प्रोसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, रिसर्च के लिए मेंटर होंगे, और जो डॉक्टरेट कर चुके हैं, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, वो सारे होंगे। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, देखिए रिसर्च केवल ऐसा नहीं कि रिसर्च सिर्फ साइंस में ही, साइंस में, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इनमें भी रिसर्च होते हैं, और इन सबों में रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी मेरू, ये ओपन करा जाएगा आईआईटी के साथ। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सिखाया जाए। जैसे एजुकेशन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI सेटअप किया जाएगा, जो अम्ब्रेला बॉडी होगी इंटायर हायर एजुकेशन के लिए, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर वेरियस प्लेयर्स, देयर आर वेरियस बॉडीज विच आर लुकिंग आफ्टर दिस, लाइक UGC एक है, और भी बहुत सारे कई हैं। तो इनमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रह जाती है, हायर एजुकेशन में इनमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रह जाती है। तो इन सब को हटा करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, जो कि इस सारे चीज़ को रेगुलेट करेगा। पर ये मेडिकल और लीगल एजुकेशन के लिए नहीं है, उसके अलावा सारे के लिए ये गाइडलाइंस बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में 4 वर्टिकल्स होंगे। 4 वर्टिकल्स मतलब इसके 4 आर्म्स होंगे जो कि काम करेंगे, जिनका अलग अलग काम है। जैसा कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एक होगा, वो रेगुलेशन होगा कॉलेज के रेगुलेशंस के लिए, जो भी हायर एजुकेशन कॉलेज सेटअप होगी उनको रेगुलेट किया जाएगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, ये स्टैंडर्ड सेट करेगी, हर एक कॉलेज के लिए स्टैंडर्ड इक्वल रहेगा। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, this will be for funding, as the name suggests, grants commission, this will be for funding, and national accreditation council for accreditation का मतलब है कि ग्रेडिंग, अगर कॉलेज को हमको ग्रेडिंग करना होगा, लेवल किस लेवल का कॉलेज है, तो ये ग्रेडिंग का काम इनका होगा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का। ओके, सो अब इसके आगे हम देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते। टीचर को खुद पढ़ना नहीं आता, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो टीचर, अब जब इतना होलिस्टिक एजुकेशन हमें देना है, क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है, वैल्यू एजुकेशन देना है, तो टीचर भी अच्छे मिलने चाहिए। तो रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, उसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और रॉबस्ट किया जाएगा। मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी ये रहेंगे। रिक्रूटमेंट जो होगा मेरिट बेस्ड होगा, मतलब कि एकेडमिक, फिर उनके टीचिंग स्किल्स, रिसर्च और फिर पब्लिक सर्विस, ये सारा कुछ देखा जाएगा। इसके लिए 4 ईयर, अब बीएड के लिए कंपलसरी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है अगर किसी को टीचर बनना है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स इज़ रिक्वायर्ड। इसके बाद देखते हैं एमफिल कोर्सेज को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं रहेगी। एंड PhD लेवल विल नाउ बी इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स। अफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस टू बी फेज्ड आउट इन 15 ईयर्स। जो अभी कॉलेज को अफिलिएशन दिया जाता है अलग अलग कमीशन द्वारा, UGC, उसको फेज आउट कर दिया जाएगा आने वाले 15 सालों में। एंड फिर जो सिस्टम आएगा, सिस्टम विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेजों को कुछ ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। एंड दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो प्रपोजेस टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन सेक्टर अप टू 6% ऑफ GDP का 6% हमें करना है। अभी कितना खर्च करते हैं,
तो वो इंडिया खर्च करता है अराउंड 4.6% ऑफ इस टोटल GDP ऑन एडुकेशन। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर हम इसे अचीव कर ले तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो एंड last point will see National Education Policy 2020 also it also aims to achieve an equitable and inclusive education system। कोई भी पीछे नहीं रहेगा। स्पेशल फोकस विल बी स्पेशल एजुकेशन जोन इन डिसएडवांटेज एरिया। ऐसे एरिया जहाँ स्कूलें ज़्यादा नहीं है उन पर भी फोकस किया जाएगा। जोन ऐसे जहाँ पे बच्चे तो रहते हैं लेकिन उनके घर से स्कूल काफ़ी दूर है या आ नहीं पाते, तो उन पर भी फोकस किया जाएगा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल्स ओपन हैं, उनको भी स्कूल में एडमिशन कराया जाए। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप। जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं, या तो वो इकोनॉमिकली में है या सोशली बैकवर्ड, किसी भी तरीके से डिसएडवांटेज है, उनके लिए स्कॉलरशिप होगा। जेंडर इंक्लूजन फंड होगा। जेंडर इक्वालिटी इंश्योर किया जाए एंड अवेलेबिलिटी एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। सो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।